Very good morning, students. I hope you all are great and revised your previous chapters. Today, we are going to do our chapter 5, which is Introduction to HTML5 and CSS. So, in this chapter, we will be going to learn about hypertext markup language and cascading style sheets in detail. So, without wasting any further time, let's start the chapter. The name of a chapter is Introduction to HTML5 and CSS, and topics which we will discuss in this chapter are HTML5, HTML tools, terms in HTML, structure of HTML document, create and save HTML document, view an HTML document, heading tag, paragraph tag, BR tag, change appearance of text, cascading style sheets, methods of applying CSS, text properties, fonts properties, background properties, and border properties. Now we have an amazing thought that education is a gift that no one can take away. Now let's see this activity in which says follow the given instructions. तो आपको क्या करना है, अपने सिस्टम के अंदर नोटपैड को ओपन करना है by clicking on start and notepad. Then write down the following code in notepad, which is this. आपको अपनी फाइल को सेव करना है with extension .html. Then आपको डबल क्लिक करना है on save file and you will get the output on the default web browser. Now let's start. Kavya says, Hi Mayank, tell me what is HTML and why it is used for. So he replies, Hi Kavya, HTML is a markup language in which the web pages are written. ये allow करती है हमें to create structure sections, paragraphs, headings, links for web pages and applications. Then she says, Oh, it is a programming language. Then he replies, No, HTML is not a programming language, but rather a markup language. HTML को हम यूज करते हैं to create electronic documents that are displayed on the World Wide Web. Today we are going to learn about it. Then she says, excellent. Let us being the chapter learn more about HTML. So in this technological world हम access कर सकते हैं all the information जो हमें require है on daily basis. हम download कर सकते हैं किसी भी चीज को, range कर सकते हैं from text files, images, audio to video files from the internet with the help of web browsers. एक ऑनलाइन प्रेजेंस हमेशा हेल्पफुल होती है इन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस दीज डेज. वी ऑलरेडी नो दैट जो वेब ब्राउजर्स है वो एनेबल करते हैं कंप्यूटर को टू डिस्प्ले वेब पेजेस. वेबसाइट कंटेन करते हैं डिफरेंट पेजेस दैट आर कॉल्ड वेब पेजेस. होम पेज क्या होता है, वेबसाइट का सबसे पहला पेज, एंड ये हमें बताता है अबाउट द साइट. होम पेज कंटेन करते हैं लिंक्स टू अदर वेब पेजेस, एंड ये जो वेब पेजेस है they are usually created by HTML and CSS. HTML hypertext markup language, CSS cascading style sheets दो core technologies है जिनकी मदद से हम वेब पेज बना पाते हैं, जहाँ पे HTML प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर ऑफ द पेज और CSS प्रोवाइड करता है लेआउट फॉर अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस. तो HTML एक बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो यूज करी जाती है बाय वेब ब्राउजर्स ताकि वो डिस्प्ले कर सके पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. ये इवॉल्व्ड है फ्रॉम अ सिंपल लैंग्वेज with a small number of tags to a complex system of markup जो enable करती है to create web page with animated images and sound. ये मदद करती है हमारी to communicate with others on the world wide web. जो टर्म है HTML वो स्टैंड करती है for hypertext markup language which is defined as hypertext and markup language. तो hypertext एक टेक्स्ट होता है जिसको हम लिंक कर सकते हैं to another document या फिर टेक्स्ट. तो by clicking on the link, एक hyperlink document, a user quickly jump to a different document. और markup language, markup एक text होता है जो appear होता है between two pointed brackets and content is everything else. Now ये हमें web browser को बताता है कि how to display a web page words and images. HTML5 ये क्या है, ये HTML का एक न्यूएस्ट वर्जन है. ये एक लैंग्वेज है जो क्रिएट करता है, ऑर्गेनाइज करता है वेब पेजेस को. ये इनकॉर्पोरेट करता है सारे फीचर्स फ्रॉम अर्ली वर्जन ऑफ HTML एंड ऐड करता है कुछ न्यू टूल्स फॉर द वेब डेवलपर टू यूज. HTML5 अलाउ करता है हमें टू ड्रॉ शेप एज सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड शॉर्टर डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन. ये बहुत फ्रेंडली है और सपोर्ट करता है ड्रैग ड्रॉप इफेक्ट को. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है HTML5 के, ये इजी है टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई. इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. it HTML you have no need to complete as in the case of other programming languages. ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है. ये प्रमोट करती है एक्सेसिबिलिटी एंड डिजाइन रिस्पॉन्सिवनेस.
ये अलाउ करती है टू एम्बेड अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस टू मैनिपुलेट डिजाइन, लेआउट, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। केस सेंसिटिव होती है मतलब रेफर करती है, डिफरेंशिएट करती है बिटवीन कैपिटल एंड लोअर केस लेटर्स। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है मतलब प्लेटफॉर्म जिसको हम यूज करते हैं इन अ कंप्यूटर कॉन्टेक्स्ट रेफर करता है कौन सा टाइप ऑफ प्रोसेसर यूज कर रहे हैं एंड या फिर कोई हार्डवेयर ऑन विच जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो रन करता है। HTML टूल्स क्या है? 3 बेसिक टूल्स होते हैं जो क्रिएटिंग HTML डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। टेक्स्ट एडिटर, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर। टेक्स्ट एडिटर क्या है? टेक्स्ट एडिटर एक प्रोग्राम है जिससे हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को एडिट या कंपोज करते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल जैसे वर्डपैड, नोटपैड, ये सब क्या है? ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड, वर्डपैड का काम करते हैं। ये यूजर को यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ऑफ HTML कमांड्स टू डेवलप अ वेब पेज। वेब ब्राउजर, यहाँ पे हम अपने HTML डॉक्यूमेंट को व्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑपरा, मोजिला फायरफॉक्स। वेब सर्वर एक ऑप्शनल है बिकॉज ये रिक्वायर्ड होता है जब भी आपको कुछ अपलोड करना है या फिर स्टोर करना है HTML डॉक्यूमेंट को ऑन अ सर्वर। नाउ HTML के अंदर क्या क्या टर्म्स आती हैं? कुछ इंपॉर्टेंट यूनिक टर्म्स होती हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ HTML। यू मस्ट नो अबाउट देम एंड देयर मीनिंग्स। सम ऑफ देम आर टैग्स। तो HTML के अंदर टैग्स का यूज करते हैं। हम क्रिएट करते हैं HTML डॉक्यूमेंट को जब भी हमें टैग्स को ऐड करना होता है टू द टेक्स्ट। तो ये जो टैग्स हैं ये ब्राउजर को बताते हैं कि वो कैसे टेक्स्ट और ग्राफिक को डिस्प्ले करे इन द डॉक्यूमेंट। ये एनक्लोज्ड होते हैं in the pair of angular brackets like this. HTML tags come from two types, container और empty tag. Container और empty tag का क्या फर्क होता है? Container tag होता है जिसके अंदर एक opening और एक closing tag present होता है, हम उन्हें container tag बोलते हैं। यानी कि beginning और ending tag जिन tags का होता है वो हमारे container tags होते हैं। Now they are written in angular brackets except for slash placed before command for ending tag। जैसे ये हमारा एंडिंग टैग है और ये हमारा खाली अगर हम स्लैश हटा दें तो वो हमारा स्टार्टिंग टैग हो जाए। एम्प्टी टैग होता है जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, कोई भी एंडिंग टैग यहाँ पे नहीं होता, इसको हम एम्प्टी टैग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल HR, BR एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज नेस्टिंग टैग्स। नेस्टिंग टैग का हम यूज करते हैं जब हमें प्लेस करना होता है एक सेट ऑफ टैग्स इनसाइड अदर टैग when you want the effect of more than one tag on a text or a graphic, etc. For example, कभी कभी you want to format a text in bold, italicized and centered, तो आपको different tags का use करना पड़ता है for each of these. Attributes का हम use करते हैं to define the characteristics of element and is placed inside the elements opening tag. All attributes के दो parts होते हैं, name और value. Name property है that you want to set और value is what you wait for the respective name. For example, font face equals to Arial color blue. तो यहाँ पे face और color क्या है? Attributes of the font tag. वैल्यूज क्या होती है? वैल्यू सेट करती है वैल्यू फॉर इनपुट फील्ड। एट्रीब्यूट्स के पास वैल्यूज हो सकती है दैट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द वैल्यू। फॉर एग्जांपल फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 25। यहाँ पे 25 क्या है? वैल्यू, एक साइज एट्रीब्यूट है इन द फॉन्ट टैग। स्पेशल सिंबल्स ये सपोर्ट करता है ASCII सेट ऑफ कैरेक्टर्स एंड सम अदर कैरेक्टर्स। दे आर जनरली 4 सिंबल्स जो हम यूज करते हैं इन HTML: एम्परसेंड, स्ट्रेट डबल कोट्स, ग्रेटर देन, लेस देन। ASCII का मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये टिपिकली कंटेन करता है कुछ स्ट्रक्चरिंग टैग्स जो क्या करते हैं? बेसिक स्केलेटन बनाते हैं हमारे डॉक्यूमेंट का। जैसे आप देख सकते हो डॉक टाइप HTML का हमने ओपन टैग किया, क्लोज टैग लास्ट में आता है, ऐसी हेड, फिर हेड को क्लोज कर देते हैं आफ्टर द टाइटल, बॉडी, और फिर हम बॉडी टैग को क्लोज करते हैं। नाउ ये कंटेन करते हैं 5 मेन टैग्स विच आर गिवन बिलो। डॉक टाइप यानी कि ये एक इंफॉर्मेशन है टू द ब्राउजर अबाउट द डॉक्यूमेंट टाइप की, एक HTML डॉक्यूमेंट। HTML ये एनक्लोज करता है सारे HTML कंटेंट को। हेड ये कंटेन करता है टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। टाइटल ये प्रोवाइड करता है टाइटल टू द वेब पेज। स्लैश टाइटल ये हमारे टाइटल का एक एंड टैग है। हेड, स्लैश हेड को हम यूज करते हैं टू एंड द हेडिंग। बॉडी ये कंटेन करता है टेक्स्ट जो हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले होगा। स्लैश बॉडी ये एंड बॉडी टैग है। स्लैश HTML ये शो करता है एंड ऑफ द HTML कंटेंट। नाउ
क्रिएट एंड सेव HTML डॉक्यूमेंट, तो हमें कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, ओपन करेंगे नोटपैड को एंड राइट करेंगे HTML कोड एज शोन, देन क्लिक ऑन फाइल, सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, सेलेक्ट करना है डिजायर फोल्डर जहां पे भी सेव करना चाहते हो, देन योर डॉक्यूमेंट नेम देना है उसको बाय अ वेबसाइट फॉलोड बाय दिस, फॉर एग्जांपल वेबसाइट HTML, क्लिक ऑन सेव बटन, आपका HTML डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। व्यूइंग इन HTML डॉक्यूमेंट, आपका कोई ऑलरेडी सेव्ड HTML डॉक्यूमेंट था उसको व्यू करना है तो क्या करोगे, आफ्टर क्रिएटिंग एंड सेविंग HTML डॉक्यूमेंट हम उसको व्यू कर सकते हैं इन द ब्राउजर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स। तो टू व्यू एन HTML डॉक्यूमेंट आपको राइट क्लिक करना है ऑन क्रिएटेड आइकन, देन ओपन बटन पे क्लिक करना है और वो ओपन हो जाएगी। हेडिंग टैग, इस टैग का हम यूज करते हैं जब भी हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग को स्पेसिफाई करना होता है। हेडिंग्स आर डिफाइंड विद H1 to H6 टैग्स। H1 डिफाइन करता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग बिकॉज ये डिस्प्ले करता है टेक्स्ट इन लार्जेस्ट साइज, H1 is the largest heading, H6 is the smallest heading. Heading tags are written within the body tag of a document. For example, हमारे body tag के अंदर अंदर ही सारी headings हमारी आती है। पैराग्राफ टैग, ये जो टैग है हम इसको यूज करते हैं टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, और पैराग्राफ बिगिन होता है पी टैग से और एंड होता है /p टैग से। ब्राउजर ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है वर्टिकल स्पेस बिफोर एंड आफ्टर ईच पी टैग। पैराग्राफ यूज कर सकता है अलाइन एट्रीब्यूट्स को, दैट मीन्स हम यहाँ पे अपने पैराग्राफ की अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। पी अलाइन लेफ्ट का मतलब है ये टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से अलाइन करेगा, राइट साइड से अलाइन करेगा, सेंटर और जस्टिफाई। बी आर टैग बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट है HTML के अंदर वो अपीयर होता है इन वन लाइन, तो हम इंसर्ट कर सकते हैं एक लाइन ब्रेक टू शिफ्ट टू द टेक्स्ट टू द न्यू लाइन। तो बी आर टैग जो है ये एक एम्प्टी टैग है एंड डज नॉट रिक्वायर कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या किया, ब्रेक लगा दिया बिटवीन द टू लाइन्स, तो अब ये दोनों लाइन्स कहाँ आएंगी, अलग अलग लाइन में आएंगी। चेंज अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें p या /p टैग का हम यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट को, i दैट मीन्स अपने टेक्स्ट को इटैलिक में करने के लिए, और u दैट मीन्स अंडरलाइन करने के लिए अपने टेक्स्ट को हम u और /u टैग्स का यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अपने टेक्स्ट को बोल्ड किया, इटैलिक किया बाय यूजिंग दीज टैग्स, तो हमें आउटपुट ऐसे मिलेगा, जो हमने बोल्ड किया वो बोल्ड हो जाएगा, जहां हमने इटैलिक यूज किया इटैलिक हो जाएगा, लाइक दिस। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स यानी कि CSS, तो ये एक रूल बेस्ड लैंग्वेज होती है जो अप्लाई स्टाइल करती है हमारे HTML एलिमेंट में। नाउ इट इज यूज्ड टू डिफाइन स्टाइल्स फॉर वेब पेज। लेटेस्ट वर्जन CSS का है CSS3, अर्लियर CSS2 वाज यूज्ड। CSS का हम यूज करते हैं फॉर वेरी बेसिक डॉक्यूमेंट टेक्स्ट स्टाइलिंग, फॉर एग्जांपल चेंजिंग कलर, साइज ऑफ हेडिंग्स, लिंक्स। इसका हम यूज करते हैं एक लेआउट क्रिएट करने के लिए, फॉर एग्जांपल turning a single column of text into layout with a main content area and a sidebar for related information. It can even be used for effects such as animation. CSS का सिंटेक्स क्या होता है, तो स्टूडेंट्स CSS यूज करता है सिंपल इंग्लिश बेस्ड सिंटेक्स विद अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न इट। तो CSS सिंटेक्स स्ट्रक्चर बहुत सिंपल और इजी होता है, इसके अंदर एक सिलेक्टर होता है, डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है, आप सिलेक्ट करते हो एक एलिमेंट को, देन डिक्लेयर करते हो व्हाट यू वांट टू डू विद इट। और CSS के दो पार्ट्स होते हैं, सेलेक्टर जो पॉइंट करता है HTML एलिमेंट को दैट यू वांट टू स्टाइल, और डिक्लेरेशन ब्लॉक जो कंटेन करता है वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। इस डिक्लेरेशन इंक्लूड करता है CSS प्रॉपर्टी नेम एंड अ वैल्यू सेपरेटेड बाय अ कॉलम। CSS डिक्लेरेशन हमेशा एंड करती है एक सेमीकोलन के साथ, और डिक्लेरेशन ब्लॉक्स जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं बाय कर्ली ब्रेसेस। Now let's consider an example. In the example, CSS rule opens with a selector. In this case, ये हमारा selector है, property and value. तो हमने यहाँ पे braces का भी यूज किया है। Inside the braces, one or more declarations आ सकती हैं which can take the form of property and value pairs. We specify the property यानी कि color in the web example before the colon, and we specify the value of the property after the colon, which is blue in the example. मेथड्स क्या होते हैं अप्लाई करने के CSS को, तो CSS को हम HTML डॉक्यूमेंट में 3 वेज से ऐड कर सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। आप ऐड कर सकते हो इनलाइन CSS को इन अ स्टाइल एट्रीब्यूट टू स्टाइल अ सिंगल HTML एलिमेंट ऑन द पेज। आप एम्बेड कर सकते हो एक्सटर्नल स्टाइल शीट को
by adding CSS to the head section to your document, and you can link to an external style sheet that will contain your CSS separate from HTML. इनलाइन स्टाइल के अंदर इसको हम यूज करते हैं एक यूनिक स्टाइल देने के लिए फॉर अ सिंगल एलिमेंट. इनलाइन स्टाइल्स को ऐड किया जाता है डायरेक्टली टू HTML टैग बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट विद द टैग. टू ऐड इनलाइन CSS आपको क्या करना है, यूज करना है स्टाइल एट्रीब्यूट को और उसको प्लेस करना है ओपनिंग टैग के अंदर ऑफ द HTML एलिमेंट. तो जैसे एलिमेंट द स्टाइल इक्वल्स टू CSS प्रॉपर्टी वैल्यू. तो यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट को अप्लाई किया अलॉन्ग विद द single element in continuation. For example, p style equals to color blue. ये एक पैराग्राफ है स्लैश p, दिस विल मेक द स्पेसिफिक पैराग्राफ ब्लू. इंटरनल स्टाइल CSS अलाउ करता है कि हम CSS कोड को हेड के अंदर लाएं, एंड ये कंटेन करता है कुछ रूल्स फॉर एंटायर पेज. डिफाइन किया जाता है बाय स्टाइल टैग इन द हेड सेक्शन ऑफ द HTML पेज. जैसे हमने यहाँ पे किया स्टाइल और हेडिंग 1 2 3 इस तरीके से किया. सो दिस इज हाउ इट विल गिव द आउटपुट. एक्सटर्नल CSS ये हमेशा डिफाइन करता है स्टाइल फॉर मेनी वेब पेजेस बाय यूजिंग सिंगल CSS फाइल. एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट सेपरेट करती है फाइल को दैट कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर. एक्सटर्नल CSS स्टाइल शीट सेपरेट करती है फाइल जो कंटेन करती है लिस्ट ऑफ CSS रूल्स एंड हैज द .css एक्सटेंशन. यू नीड टू लिंक इट टू HTML हेड सेक्शन यूजिंग लिंक टैग. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, CSS फाइल को क्रिएट कर रहे हैं. शोन बिलो सेव दिस नेम इन CSS style.css. तो हमने हेडिंग 2 दी कलर ग्रीन की कलर पिंक. क्रिएट HTML फाइल जिसमें हम HTML फाइल को क्रिएट कर रहे हैं ऐड करके CSS लिंक को. तो HTML हेड लिंक दे दिया हमने .css, हेड क्लोज किया, बॉडी हेडिंग 2 पैराग्राफ एलिमेंट डाल दिया, बॉडी क्लोज कर दिया, HTML क्लोज कर दिया. सेव दिस फाइल इज program.html. नाउ आपको रन करना है above HTML फाइल टू सी द आउटपुट. इसको जब आप रन करोगे तो आपको ये आउटपुट मिलेगा. टेक्स्ट प्रॉपर्टीज इफेक्ट करती है स्पेसिंग एंड दूसरे लेआउट फीचर्स को ऑफ द टेक्स्ट जो अलाउ करते हैं मैनिपुलेशन. फॉर एग्जांपल स्पेस बिटवीन लाइंस एंड लेटर्स एंड हाउ द टेक्स्ट इज अलाइंड विद द कंटेंट बॉक्स. टेक्स्ट प्रॉपर्टीज कैन वर्क ऑन इंडिविजुअल एलिमेंट्स जैसे p, h1 etc. कलर CSS कलर प्रॉपर्टी सेट करता है कलर ऑफ द फोरग्राउंड कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट जैसे अंडरलाइन या फिर ओवरलाइन प्लेस ऑन टेक्स्ट यूजिंग द टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी. इसका सिंटेक्स है कलर जिसमें हम कलर नेम देते हैं लाइक दिस. फॉर एग्जांपल पैराग्राफ का कलर दे दिया ग्रीन. टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे प्रॉपर्टी है जो अलाउ करती है डेकोरेशन थ्रू 1 और 5 प्रॉपर्टीज जैसे अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, ब्लिंक और डिफॉल्ट नल. तो इस तरीके से हम टेक्स्ट डेकोरेशन में वैल्यू दे देते हैं हेडिंग 1 टेक्स्ट डेकोरेशन ब्लिंक. तो इस तरीके से हम इन पांचों में से कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारे टेक्स्ट को अलाइन करती है लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई जैसे टेक्स्ट अलाइन टाइप. टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हम क्या करते हैं टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करते हैं. That should only be used to express the stylistic desire. It would be inappropriate. For example, अगर आपको text transform use करना है to capitalize a list of countries or names, तो आप क्या करोगे text transform value जहाँ पे value upper case, lower case या फिर capitalize हो सकती है and none. Word space, letter spacing, यहाँ पे हम word spacing property को define करते हैं कि words के बीच में कितना space देना है. तो उस हिसाब से हम या फिर letters के बीच में वो value justify करते हैं. टेक्स्ट एडेंटेशन यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सिग्निफाई करती है एडिटेशन जो हम अपनी लाइंस में अप्लाई करते हैं इन द कंटेंट ब्लॉक. ये कॉमनली यूज किया जाता है ऑफ टेक्स्ट इंडेंट वुड बी इंडेंट अ पैराग्राफ जैसे टेक्स्ट इंडेंट और उसकी वैल्यू. टेक्स्ट शेडो CSS पे टेक्स्ट शेडो प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है जब भी हमें अपने टेक्स्ट पे एक शेडो इफेक्ट देना होता है. आप इसको यूज कर सकते हो टू अप्लाई ड्रॉप शेडो, आउटर ग्लोज एंड अदर शेडो इफेक्ट्स टू टेक्स्ट. तो आपको क्या करना है टेक्स्ट शेडो हॉरिजॉन्टल साइज, वर्टिकल साइज, कलर नेम. यू कैन स्पेसिफाई द हॉरिजॉन्टल साइज, वर्टिकल साइज एंड शेडो कलर फॉर द टेक्स्ट. फॉन्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है CSS में फॉन्ट प्रॉपर्टीज होती है जो अलाउ करती है हमें टू चेंज द लुक फॉर द टेक्स्ट. फॉर एग्जांपल आप असाइन कर सकते हो फॉन्ट फैमिली, अप्लाई बोल्ड, इटैलिक, फॉर्मेटिंग, चेंज द साइज एंड मोर. CSS फॉन्ट फैमिली यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है वो अलाउ करती है टू सेट द फॉन्ट फैमिली. ये एक्सेप्ट करती है लिस्ट ऑफ डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज. इसका सिंटेक्स है फॉन्ट फैमिली इज फैमिली नेम जेनेरिक फैमिली. जहाँ पे फैमिली नेम क्या है नेम ऑफ द फॉन्ट फैमिली ऑफ चॉइस और जेनेरिक फैमिली को डिफाइन किया जाता है एज अ ग्रुप ऑफ फॉन्ट फैमिली विद सिमिलर लुक्स सच एज सेरिफ, मोनोस्पेस एटसेट्रा.
CSS फॉन्ट साइज, यहाँ पे हम अपने फॉन्ट का साइज यानी कि अपने टेक्स्ट का साइज जस्टिफाई करते हैं और ये कंट्रोल करता है साइज ऑफ द फॉन्ट। तो फॉन्ट साइज इक्वल्स टू जो भी हम वैल्यू डालना चाहते हैं वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू है वो इसी इन यूनिट्स में होती है। फॉन्ट स्टाइल, CSS फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है अपने फॉन्ट को, फॉन्ट टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए। तो फॉन्ट स्टाइल इक्वल्स टू वैल्यू। फॉन्ट वेट, यहाँ पे CSS फॉन्ट वेट का यूज किया जाता है टू इंक्रीज और डिक्रीज हाउ बोल्ड और लाइट अ फॉन्ट अपीयर्स। ये ऑल्सो कंट्रोल करता है थिकनेस ऑफ और कंपैक्टनेस और हेवीनेस ऑफ द टेक्स्ट। इसका सिंटेक्स है फॉन्ट वेट नॉर्मल बोल्ड बोल्डर लाइट 100। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है टू डिफाइन द बैकग्राउंड इफेक्ट ऑन एलिमेंट। ये अलाउ करता है टू राइट मल्टीपल CSS प्रॉपर्टीज इन वन डिक्लेरेशन। एंड कुछ है इनमें से, जैसे बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, जो क्या करेगी, बैकग्राउंड का कलर सेट करेगी। तो बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू कलर और हम कलर जस्टिफाई कर देंगे, जैसे रेड येलो ग्रीन एटसेट्रा, या फिर उनका हेक्साडेसिमल कोड भी हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने बैकग्राउंड में इमेज सेट कर देते हैं एज एन एलिमेंट। बाय डिफॉल्ट इमेज कवर करती है एंटायर एलिमेंट, बट आप सेट कर सकते हो उसकी विड्थ हाइट इन द बैकग्राउंड इमेज। और यहाँ पे हम इन फॉर्म में अपनी इमेज को यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज योर पाथ ऑफ द इमेज। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपको ये क्रिएट करना है इन HTML। नेक्स्ट इज बॉर्डर प्रॉपर्टीज। बॉर्डर प्रॉपर्टीज जो है CSS के अंदर, वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है जो यूज की जाती है टू सेट बॉर्डर ऑन एलिमेंट। कुछ CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज है, जैसे बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है ये अलाउ करती है टू सेट द बॉर्डर स्टाइल ऑन ऑल साइड्स ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पे कुछ बॉर्डर स्टाइल वैल्यूज होती है विच आर यूज्ड विद बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी टू डिफाइन अ बॉर्डर। जैसे बॉर्डर स्टाइल इक्वल्स टू उसकी वैल्यू, तो हम इसमें वैल्यूज दे सकते हैं, डबल, ग्रूव, इनसेट, आउटसेट एक्सेट्रा। बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी, यानी कि जो आपने बॉर्डर सेट करा है टू द एलिमेंट उसका कलर क्या होगा। तो बॉर्डर कलर, कलर का नेम, जैसे RGB या फिर उसका हेक्साडेसिमल कोड। नाउ फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से उनको जस्टिफाई कर सकते हैं। लेट्स रिवाइज द चैप्टर। होम पेज फर्स्ट पेज होता है ऑफ एवरी वेबसाइट। HTML बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो यूज की जाती है बाय वेब ब्राउजर्स टू डिस्प्ले पेजेस ऑन www। टेक्स्ट एडिटर एक प्रोग्राम है जो अलाउ करता है यूजर को टू एडिट और कंपोज HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML टैग्स दो टाइप के होते हैं, कंटेनर और एम्प्टी। एट्रीब्यूट को यूज किया जाता है टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट। बॉडी कंटेन करता है टेक्स्ट विच इज डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। H1 is the largest heading, H6 is the smallest heading. VR tag is an empty tag. CSS को हम use करते हैं for basic documenting text styling. Let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct option. HTML is a language which in which dash are written web pages. In HTML, each tag gives a space specific instruction enclosed with these. Which tag used to define the text in the form of paragraph? Which of the following tags have opening and closing tags? Container tags. Correct syntax to change the font name. Font. Dash is an empty tag. CR tag. Now, fill in the blanks. HTMLs are enclosed in. Dash attribute is used to define inline CSS styles. Style attribute. HTML is a platform independent language. All attributes have two parts. Dash provide a title to a web page. Dash is the largest heading. Next is true false. Tag said to be a non-empty tag when it exists between the beginning and ending tag. True. Nesting tag is used to replace the set of tags outside the other tags. False. Web server is required when you need to delete the HTML document. False. PR tag is an empty tag. True. CSS can be used for very basic documenting text styling. True. The border color property allows you to set the border line of a box. False. So students, this was a complete chapter about HTML5 and CSS. I hope the chapter is clear to you. Do revise it, practice it and learn your exercises. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.